everyone. Welcome to my channel 24/7 English. This is the part 2 of lesson On the Face of It by Suzanne Hill. In part 1, we have already discussed that Derry entered in the garden of Mr. Lamb and they started talking to each other. Actually, Mr. Lamb and Derry both are having some physical impairment, like Mr. Lamb has tin leg and Derry has a burnt face. Now, Derry has a quite negative attitude towards life, but Mr. Lamb is very much positive. So what happens when they are talking to each other? Because Mr. Lamb is full of positivity and Derry is quite defiant, and he himself feels very lonely and he doesn't want to intermingle with any other, or he doesn't want to be friend with anyone else. So let's start. Mr. Lamb: "Ah, but do you care if you never kiss them?" "What?" "Girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love." "Who would let me?" "Not one." "Who can tell? I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face." "So you will. But the word won't. The word's got a whole face, and the word's there to be looked at." "Do you think this is the word, this old garden?" "When I'm here, not the only one, but the word as much as anywhere." "Does this leg hurt you?" "Tin doesn't hurt, boy." Now, we have seen that Derry and Mr. Lamb, both of them are talking to each other. And Mr. Lamb told him the story of Beauty and the Beast. Beauty and the Beast जो स्टोरी आप सबने भी सुनी है, और वो कहते हैं आपस में जब डिस्कस कर रहे हैं तो मिस्टर लैम उससे पूछते हैं कि ठीक है, तुम ये केयर नहीं करते कि तुम्हारी मदर तुम्हें किस करे या तुम्हें अफेक्शन दिखाए या तुम्हें लव करे, बट क्या तुम ये भी नहीं चाहते कि कोई प्रेटी गर्ल्स तुम्हारी लाइफ में आए या तुम उनसे लव करो? तो अब वो पूछते हैं व्हाट? अब कहते हैं मुझे कौन, हु विल अलाउ मी, हु विल लेट मी, मुझे कौन अलाउ करेगा? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई भी। अब ये बात तो कौन कह सकता है, कोई नहीं जानता, बट वो कहते हैं, डेरी बोलता है कि मैं इससे चेंज नहीं हो जाऊंगा, इससे कुछ भी चेंज मेरे लाइफ में नहीं होने वाला। हो सकता है जब मैं तुम्हारे जितना ओल्ड हो जाऊं, जब तुम्हारे जितना मेच्योर हो जाऊं, मैं भी ऐसा दिखने लगूं इन द सेंस कि हो सकता है मेरी थिंकिंग भी चेंज हो जाए, मैं भी तुम्हारी तरह सोचने लगूं, इस तरह के थॉट्स मेरे हो जाएं। तो मिस्टर लैम उसको ये कहते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है, बट ये वर्ड जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इसका इसलिए तुम्हें ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ये वर्ड तुम्हारे लिए चेंज नहीं होने वाला। तो अब वो क्या कहता है कि वर्ड का तो पूरा फेस है, तुम अपना फेस मानते हो कि तुम्हारा फेस हाफ है, बट ये वर्ड पूरा फेस है, उसका अपना पूरा फेस है। तो डेरी इस बात को कहता है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो और इस गार्डन में रहते हो, तो तुम्हारे लिए क्या है, पूरा गार्डन ही सिर्फ एक वर्ड है, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि डेरी ये चीज जानता था कि वहां पे लोग नहीं आते, ऑल्दो द गेट्स आर ओपन, लेकिन फिर भी वहां पे लोग नहीं आते। और डेरी मिस्टर लैम किसी को डिनाई नहीं करते आने के लिए, और वो सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे लोग मिलने के लिए ज्यादातर नहीं आते, कोई आता है तो वापस लौट कर नहीं आता। तब डेरी इस बात को चेंज कर देता है, टॉपिक को चेंज करके कहता है, क्या ये टिन लेग तुम्हें हर्ट करती है? तो मिस्टर लैम बताते हैं कि नहीं, ये मुझे हर्ट नहीं करती। एंड व्हेन इट केम ऑफ डिड इट सर्टेनली, जब ये उतर जाएगी तो तब सर्टेनली, हाँ तब जरूर हो सकता है कि पेन हो, लेकिन तब तक ऐसा कोई पेन नहीं होता। नाउ डायरी सेज, एंड नाउ I mean where the tin stops at the top. Now and then, in wet weather, it doesn't signify. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. I haven't said this. And think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair and be daft in your head or dribble. And that's all true, and you know it. It won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman, and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. Mr. Lamb says, so you believe everything you hear then? It was cruel, maybe not meant as such, just something said between them. Only I heard it. I heard.
नाउ डैडी सेज, डैडी वॉन्ट्स टू कंसोल हिम। अब वो डैडी उनको समझाना चाह रहे हैं मिस्टर लैम्ब को, और वो क्या कहता है कि अब पहले तो ये पूछता है कि ये टिन, आपकी टिन लेग कहाँ स्टॉप होती है, मतलब ये टिन, आपको टिन लेग कहाँ से लगी हुई है, कितना आपका पैर कटा हुआ है, एम्पुटेट हुआ है। तो मिस्टर लैम्ब उसको फिर वो कहते हैं कि वेट वेदर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी ऐसा दिक्कत नहीं आती है। और कुछ और अब वो बात करने लग जाते हैं, और वो क्या कहते हैं कि लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सब लोगों का, अब डैडी उनको बता रहा है कि उन लोगों को देखो, वो कितने ज़्यादा पेन में हैं, ब्रेव हैं, लेकिन बिल्कुल रोते नहीं हैं, नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए कभी सॉरी भी नहीं बोलते। अब डैडी पहले तो ऑपोजिट वे में, मतलब नेगेटिव बात कर रहा था, लेकिन अब डैडी ही इज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मिस्टर लैम्ब को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने बारे में ही मत सोचो, उन लोगों के बारे में भी सोचो जिनको तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, जो तुमसे ज्यादा पेन में है, लेकिन वो फिर भी कोई कंप्लेन नहीं करते। तो अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आई हैवंट सेड इट। तो डैडी उनको कहता है कि उन लोगों के बारे में भी सोचो जो तुमसे भी ज्यादा वर्स ऑफ है, मतलब तुमसे भी ज्यादा गए गुजरे, जो और ज्यादा तुमसे, तुम्हारी तो एटलीस्ट स्टिल लाइक है, तुम चल सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन वो बेचारे जिनके पास ये भी नहीं है। और फर्दर क्या बोलता है उसको कि इसमें, इस एक्सीडेंट में, या जो ब्लॉन ऑफ हुआ तुम्हारी लेग, ब्लाइंड भी हो सकते थे तुम, तुम्हारे साथ और भी कुछ हो सकता था, हो सकता है तुम बॉर्न डेफ, पैदा ऐसे होते कि तुम ना सुन सकते ना बोल पाते, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तुम परमानेंटली व्हील चेयर के ऊपर आ जाते, तो ये सब चीजें हो सकती थी, या तुम्हारे सर में इतनी ज्यादा चोट लग जाती कि कुछ भी हो जाता, हेड इंजरी हो जाती। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ ये सब बातें बिल्कुल सही हैं, दैट्स ऑल ट्रू, और तुम इन सबको जानते हो, यू नो इट। तो डैडी उनको कहता है लेकिन इससे मेरा फेस चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब वो जानता तो सब कुछ है, समझता भी है, और दूसरों को अंडरस्टैंड करवा सकता है, दूसरों को समझा सकता है, बट ही डजंट वांट टू मेक हिमसेल्फ अंडरस्टैंड, ही डजंट वांट टू अडेप्ट ऑल सच थिंग फॉर हिमसेल्फ। वो सब चीजों को अपने लिए अडेप्ट नहीं करना चाहता, अपने ऊपर वो चीज नहीं लेना चाहता। वो दूसरों को समझाने के लिए तैयार है, लेकिन खुद को वो नहीं समझाना चाहता। तो डैडी कहता है कि मुझसे, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वो एक इंसिडेंट बता रहा है उसको कि एक वेमन थी, शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट मी, और वो मेरे बारे में बात कर रही थी। अब वो साथ में ये भी कहता है कि विस्पर्ड मीन्स शी वाज टॉकिंग वेरी स्लोली, इन अ वेरी स्लो वॉइस, बिल्कुल स्लो वॉल्यूम में बात कर रही थी। विस्परिंग मतलब किसी से फुसफुसाना, तो वो कानों में जैसे बात कर रही थी। अब मिस्टर लैम्ब को ये कहता है कि तुम जो भी कानों से सुनते हो सब पे बिलीव करते हो, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हमें कानों सुनी हर बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो अभी वही चीज ये यहाँ कहते हैं कि क्या तुम जो भी सुनते हो वो सब पे बिलीव करते हो। और अब वो क्या बताता है कि क्या बोल रही थी वो लेडी, वो कहती है लुक एट हर, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितनी भयानक और गंदी चीज है ये, और ऐसे फेस को तो सिर्फ एक मदर ही लव कर सकती है। अब उसने ये बात बोला कि वो लेडी मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, लेकिन मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम तो कह रहे हो कि वो विस्पर, शी वाज विस्परिंग, तो हाउ डू यू नो दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट यू, एंड इट वाज, डैडी कहता है इट वाज क्रूअल, बहुत बेकार, क्रूअल, गंदी चीज थी ये। और वो कहते हैं मिस्टर लैम्ब कि मे बी नॉट मेंट एज सच, कि ऐसा नहीं हो सकता है इसका कोई और मीनिंग हो सकता है कि उसने इन बिटवीन कुछ और बोला हो, और जिस टाइम तुमने सुना हो तुमने सिर्फ ये बात सुन ली हो सकता है वे किसी और के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारे बारे में तो बात ही ना कर रहे हो, और मे बी तुम्हें ऐसा लगा हो जैसे तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। तो वो अब क्या कहता है डैडी, ओनली आई हर्ड इट, कि सिर्फ मैंने सुना और किसी ने नहीं सुना। मतलब अब बहुत लोगों को आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई बात कर रहा हो तो उनको लगता है कि मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ही टॉपिक लिया हुआ है, मेरी ही बात कर रहे हैं, और कोई हंस भी रहा हो तो उनको लगता है ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो उनको अंदर से एक गिल्ट रहती है, एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस, मतलब उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ऑफ दैट दे थिंक सो मेनी थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स। तो इसी वजह से, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो ये सब सोचते हैं, और वो अपने मन में ये परसेप्शन, अपने अंदर ये परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि जो भी उनके सामने हंस रहा है तो वो उस पर ही हंस रहा है। अगर कोई चुपचाप किसी से बात कर रहा है और सडनली उसको देख लिया तो वो उन्हीं को देख के बात कर रहा है, उन्हीं के ऊपर बात कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपने भी देखी होंगी अपने आसपास, अपने नेबरहुड में, अपने स्कूल में, कहीं पर भी। और तो वही चीज यहाँ पर है कि वो भी यही बात कहता है कि हो सकता है तुमने जो सुना वो ठीक ना हो, एंड इज द ओनली थिंग यू एवर हर्ड। क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने ऐसी कोई बात सुनी है एनीवन से इन योर लाइफ?
तुम्हारे मतलब तुम्हारी लाइफ में क्या यही बातें हैं और कोई लाइफ में बात नहीं है? मतलब कोई अच्छी बात है तो उसको याद रखो, कोई अच्छी मेमोरीज, अपनी गुड मेमोरीज, प्लीजेंट मेमोरीज अपने माइंड में रखो। कि क्या जरूरत है तुम्हें ऐसी बैड मेमोरीज को अपने माइंड में रखने की? और जिनके बारे में तुम जानते नहीं, जिन्हें तुम जानते नहीं, उनको अपने माइंड में, उनको इतनी इंपॉर्टेंस देने की लाइफ में ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है तुम्हें उस लेडी के बारे में सोचने की भी, चाहे वो तुम्हारे ही बारे में बात क्यों ना कर रही हो? ऑल्दो मे बी शी वॉज टॉकिंग अबाउट यू, बट सो वॉट? तुम उसको जानते नहीं, वो कौन थी, वो बात करके चली गई, उसका तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, उसका तुम्हारी लाइफ में रोल क्या है? तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचकर तुम क्यों परेशान होते हो? क्यों नहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करते, अपना आराम से फ्रीली घूमते? जिसको जो देखना है, जिसको जो सोचना है, लेट देम डू। आप किसी की सोच को, किसी के थॉट्स को चेंज नहीं कर सकते, तो सोचने दो उनको जैसा सोचते हैं। नाउ व्हाट डेरी सेज, मिस लैम, so now you keep your ears shut. You are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gate's open. Yes, but I have a hive of bees behind those trees over there. Some bees, some hear bees, and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum. And hum means sing. I hear them singing my bees. अब डैडी क्या कह रहे हैं कि तुम जो बातें कर रहे हो, अब मिस्टर लैम्स को कहते हैं तुम अपने कान बंद रखा करो। यू जस्ट कीप योर ईयर्स शट। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है सब तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, तुम्हारे से रिलेटेड ही सब टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ तुम ही को लेके वो बात कर रहे हैं। मतलब तुम उनकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस रखते हो क्या कि सब तुम्हें ही बात कर, तुम्हारी ही बात करें? तो तुम अपने कानों को बंद रखा करो, तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब वो कहते हैं यू से पेक्यूलियर थिंग्स, तुम बड़ी अजीबोगरीब बात करते हो, बड़ी अटपटी सी बातें करते हो, जैसे कहते हैं कि बड़ी सनकी सी बातें करते हो तुम, बड़ा स्ट्रेंज तुम्हारी बातें होती हैं। तो वो क्या कहते हैं, और तुम जो क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते हो कि मुझे तो समझ ही नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू आस्क, व्हाट डू यू आस्क, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो अब मिस्टर लैम्स को क्या कहते हैं कि आई लाइक टू टॉक, मुझे तो बात करना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे कंपनी पसंद है। अब क्यों कंपनी पसंद है? क्योंकि मिस्टर लैम तो अपने घर में अकेले रहते हैं। अब नेचुरल सी बात है, जब उनके पास कोई आएगा तो ही वांट्स टू टॉक, उनको तो कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए जिससे वो बातें करें, उनका टाइम पास हो। तो कहते हैं मुझे तो कंपनी पसंद है और ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने की, कोई कंपल्शन नहीं है ऐसी। तुम्हारा मन करे तो तुम आंसर दो, नहीं मन करे तो आप जा सकते हो। यू कैन लीव हियर फ्रॉम हियर, गेट्स आर ओपन। जैसे तुम्हारा मन किया तुम आए, ऐसे ही तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। अब वो उसको क्या लगता है डैडी को कि जब मैं अपनी मर्जी से आया हूँ तो मैं जाऊँगा भी अपनी मर्जी से। जैसे उसने पहले कहा कि मैं फ्रेंड्स भी अपनी मर्जी से बनाता हूँ, तो सेम वे अब वो कहता है यस जा सकता हूँ, बट डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आगे वो कुछ बोलना चाहता है बट वो रुक जाता है कि अगर मैं जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मगर तुम्हारे कहने से मैं क्यों जाऊँ? जाऊँगा तो मैं अपनी मर्जी से जाऊँगा। सो वो ये चीज़ ना कहते हुए वो वहाँ स्टॉप कर देता है। और मिस्टर लैम उसको क्या बताते हैं कि वो देखो हाइव ऑफ बीज, हाइव ऑफ बीज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो वो कहते हैं वहाँ पे बिहाइंड द ट्रीज। अब ये बीज जो हैं ये सारा दिन शोर मचाती हैं, एंड यू नो द साउंड ऑफ बीज एक्चुअली दे बज, इस तरह की साउंड उनकी आती है हमेशा। तो आपने कभी भी सुना हो तो वो कहते हैं कि बीज बज, नॉर्मली पीपल से दिस थिंग, सब लोग यही कहते हैं, बट मिस्टर लैम क्या कहते हैं, आई से दैट दे हम। मैं कहता हूँ कि वो हम करती हैं, वो बीज नहीं, बज नहीं करती हैं। हम मीन्स सिंगिंग। तो वो कहते हैं कि आई से दीज आर सिंगिंग, कि उनका कहना है कि वो गाना गाती हैं, वो सिंगिंग करती हैं, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि वो बजिंग करती हैं। इसका मतलब कि बाकी लोगों को उनकी जो वॉइस है वो डिस्टर्बिंग लग सकती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। तो ये अपना अपना परसेप्शन है, अपना सोचने का तरीका है कि मैं उस चीज़ को किस तरह से अपनी लाइफ में लेता हूँ। अब डैडी क्या कहता है, but I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. If you would see me, you would not have come in. No, no. It would have been trespassing. Ah, that's not why. I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. You could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run over him, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death.
or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. अब डैडी क्या कहता है उनको? डैडी कहता है उन्हें कि मुझे यहाँ आना अच्छा लगा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बहुत टाइम से आना चाहता था और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ आ गया। एंड वेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने उस वॉल को देखा, मैं हमेशा उस वॉल के अक्रॉस, मतलब उस वॉल के अक्रॉस में इस गार्डन को देखता रहता था और मुझे बहुत पसंद था, तो मैं यहाँ आना चाहता था और मैं आ गया। तो मिस्टर लैम्ब उसको क्या कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं देखते तो शायद तुम नहीं अंदर एंटर करते, मतलब तुम डर जाते मुझसे। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वो ये कहना चाहता है कि वो ब्रेव है, वो बहुत बोल्ड है, लेकिन उसकी ब्रेवरी, उसकी बोल्डनेस जो है वो किसी और कॉर्नर में उसके अंदर है, और वो जो एक्चुअली उसका जो नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो क्या कहते हैं उसे, मिस्टर डैडी उनको कहता है कि मैं ट्रेस पासिंग, मतलब मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं यहाँ से गुजरता था हमेशा, और मैं हमेशा तुम्हारे गार्डन को देखता था। तो लेकिन वो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि दैट्स नॉट व्हाई, मतलब इसलिए तुम गार्डन में नहीं आए, बस रीज़न कुछ और है। तो वो कहते हैं कि मेरे को लोगों के पास जाना पसंद नहीं है, मैं नहीं लोगों के पास जाना चाहता, डैडी बोलता है, क्योंकि लोग मुझे स्टेयर करते हैं, घूरते हैं, और वो मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपने आप को रूम में लॉक कर लो। कैसे लॉक कर लो? अब वो एक स्टोरी बताते हैं उसको कि देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, एंड ही वाज अफ्रेड, वो हर चीज़ से डरता था, हर चीज़ से। उसको क्या लगता था? उसे लगता था कि अगर वो बाहर निकलेगा, रोड पे आएगा, तो बस उसके ऊपर से चढ़ जाएगी। और कोई सपोज कोई आदमी उसके सामने आएगा, वो स्नीज करेगा या कफ करेगा, तो वो डेडली जर्म्स जो हैं, या वो इवन ब्रीथ भी करेगा, सांस भी लेगा, तो उसके थ्रू उसके डेडली जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे। या कोई डंकी खड़ा होगा तो उसको किक कर देगा और वो मर जाएगा। और क्या सोचता था वो कि मे बी अगर वो कहीं खड़ा हो और लाइटनिंग मतलब जो थंडर और लाइटनिंग होती है एट द टाइम ऑफ रेनफॉल, तो वो लाइटनिंग की वजह से वो उसको लाइटनिंग उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकती है और वो मर जाएगा, वो वहां मर जाएगा। और क्या सोचता है, और ही माइट, और या फिर ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है, ऐसा कुछ हो जाए कि उसको किसी लड़की से प्यार हो और वो उसको छोड़कर चली जाए तो वो मर जाए, या किसी बनाना स्किन के ऊपर स्लिप कर जाए और वो मर जाए। अब वो इन सब चीज़ों से इतना डरता था, और वो कहता है कि जब वो गिर जाएगा बनाना स्किन के ऊपर तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो वो जब इन सब चीज़ों से इतना डरने लगा तो उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया, और लॉक करके वो अपने बेड के ऊपर जाके लेट गया और वहीं रहा। अब डैडी क्या पूछता है, फॉर एवर, क्या हमेशा के लिए? फॉर अ वाइल, देन व्हाट? A picture fell off the wall onto his head and killed him. Ha ha ha. You see? But you still say peculiar things. Peculiar to some. But what do you do all day? Sit in the sun, read books. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's full books and other things. Full. But there are not any curtains at the windows. I'm not fond of curtains, shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. Yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. So you are not lost, are you? Not altogether. You do your things, you listen. अब उनकी आपस में ये कन्वर्सेशन चल रही है, उनकी कम्युनिकेशन बढ़ती जा रही है, और डैडी को भी इंटरेस्ट आने लग गया है। मिस्टर लैम्ब को तो इंटरेस्ट आ ही रहा है, क्योंकि उनको तो अच्छा लगता है लोगों से बात करना। अब डैडी इज ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड इन ऑल दिस कॉन्वर्सेशन। सो व्हाट ही सेज दैट कि फिर क्या हुआ, क्या वो आदमी परमानेंटली हमेशा के लिए अपने घर में लॉक हो गया, अपने रूम में लॉक हो गया? तो कहते हैं नहीं, फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए। और फिर क्या होता है कि वहीं पे जो बेड पे लेटा हुआ था उसके हेड के ऊपर एक पिक्चर थी, और वो पिक्चर उसके ऊपर गिर जाती है, उसके हेड के ऊपर, वो मर जाता है। तो डैडी जो है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा इतना कुछ सोच कर कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मर जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ इंसिडेंट उसने, अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट ही हैज क्रिएटेड इन हिज ओन माइंड कि कुछ भी हो सकता है। और वो ये सब से बचकर अपने बेड पे जाके लेटा, और उसको लगा कि मैं अपने रूम में बिल्कुल सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, और अल्टीमेटली डेथ कहाँ हो गई? उसके अपने बेड के ऊपर हो गई। तो वो हंसने लग जाता है, और फिर वो कहता है कि देखो, तुम फिर से पेक्यूलियर बातें करते हो, तुम ऐसी स्ट्रेंज बातें करते हो, तुम इस तरह की बातें करते हो। तो कहता है कुछ लोगों को लगती है पेक्यूलियर। अब फिर डैडी पूछता है उससे कि तुम सारा दिन क्या करते हो, बिकॉज यू आर ऑल अलोन एट योर होम, अपने घर में अकेले रहते हो, बोर हो जाते होगे, तो सारा दिन करते क्या हो?
तो वो बताते हैं उसको कि मैं सिट इन द सन, रीड बुक्स पढ़ता हूँ। तुम्हें लगता है दैट हाउस इज एम्प्टी, खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर जाके देखोगे तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स इन माई हाउस एंड मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। तो अब वो कहते हैं, डैडी पूछता है बट तुम्हारे इस पे तुम्हारे विंडोज पे कर्टेन्स नहीं है। अब बहुत उसको स्ट्रेंज लगता है, बिकॉज रियली इट्स स्ट्रेंज कि कभी आपने ऐसा क्यों कोई घर शायद ही देखा हो जहाँ विंडोज पे कर्टेन्स ना हो। तो कहते हैं तुम्हारी विंडोज पे कर्टेन्स नहीं है, ऐसा क्यों? तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स पसंद नहीं है, क्योंकि शटिंग थिंग्स इन शटिंग थिंग्स आउट, मतलब अंदर की चीजें अंदर बंद कर देना, बाहर की चीज बाहर बंद कर देना, मुझे ये पसंद नहीं है। अब इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग कि जैसे बाहर के दिन, बाहर का मतलब उनका कहने का मतलब है कि सनलाइट आ रही है, विंड आ रही है, आपकी और भी चीज़ें जैसे अच्छी ब्रीज इज ब्लोइंग और देयर इज वेरी नाइस सनलाइट और रेनफॉल, जो भी चीज़ें हैं वो बाहर की फिर बाहर ही रह जाएंगी। अगर कर्टेंस मैंने लगा दिए तो मुझे तो दिखेंगी नहीं। और सेम वे जो कुछ घर के अंदर है वो अगर मैं बाहर हूँ या कोई भी बाहर है तो उसको भी नहीं नजर आएगा घर के अंदर। तो मुझे अंदर की चीज़ अंदर और बाहर की चीज़ बाहर रखना पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कर्टेंस ना हो यहाँ पर, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर के अंदर लाइट आए, रात को शाम के टाइम डार्कनेस हो वो भी मुझे नजर आए। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। अब डैडी भी कहता है कि हाँ मुझे भी पसंद है। अब वो क्या बताता है, क्या पसंद है उसको? व्हेन इट्स रेनिंग, जब इट्स रेनफॉल। अब नेचुरल सी बात है, सबको, शायद ही कोई हो जिसको रेन ना पसंद हो, सबको ही बारिश अच्छी लगती है। तो वो ये बताता है कि मुझे जो उसकी रूफ के ऊपर जो रेनफॉल की आवाज़ आती है, जो वॉइस ऑफ द रेन होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। नाउ तो अब मिस्टर लैम्स को कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट, इसका मतलब तुम पूरी तरह से लॉस्ट नहीं हो, मतलब तुम्हारा दिमाग अभी काम कर रहा है, मतलब कि तुम अभी ठीक ठाक हो। और अगर तुम थोड़ा सा अपना थॉट्स को पॉजिटिव वे में लेकर आओ, पॉजिटिवली सोचना शुरू करो, तो शायद तुम ठीक हो जाओगे अपनी लाइफ में और तुम अपनी लाइफ को फुली इंजॉय भी कर सकोगे। अब वो क्या कहता है डैडी, दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट विल ही एवर डू, what's going to happen to him when we have gone, however will he get on in this world looking like that, what with that on his face, that's what they say. Lord boy, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, you will get on the way you want like all the rest, and if you chose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. How? Same way as I do. Do you have any friends? Hundreds. But you live by yourself in that house. It's a big house too. Friends everywhere. People come in. Everybody knows me. The gate's always open. They come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. But I am not a friend. Certainly you are. So far as I'm concerned, what have you done to make me think you are not? अब क्या बात कर रहे हैं दोनों आपस में? अब उसको बताता है सो यू आर नॉट लॉस्ट। तब डैडी ये बात कर रहे हैं, कहते हैं कि वो डाउनस्टेयर्स पे बात कर रहे थे। डाउनस्टेयर्स मतलब कि नीचे की साइड उसके पेरेंट्स बैठे थे, बात कर रहे थे। और नेचुरल सी बात है कि सबके पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है, क्योंकि देखो पेरेंट्स कभी किसी के हमेशा नहीं रहते, आज नहीं तो कल किसी ना किसी के, मतलब सबके पेरेंट्स हमेशा उनके साथ नहीं रहते। तो पेरेंट्स का सबसे मेन वरीज, उनकी सबसे बड़ी उनकी लाइफ में टेंशन क्या होती है कि उनके बाद उनके बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो सेफ रहे, सिक्योर रहे अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करे। सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हम अपनी लाइफ को और अच्छा, बेटर, सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं। अब वही कहता है कि मेरे पेरेंट्स वो यही बात कर रहे थे कि हमारे बाद इसका क्या होगा, ये कैसे रहेगा, कैसे मैनेज करेगा इस वर्ल्ड में, और लोग इसको किस तरह से देखेंगे और ये वर्ल्ड को किस तरह से देखेगा, मतलब कि इसका परसेप्शन कैसे चेंज होगा। बिकॉज ये तो हमेशा नेगेटिव थॉट रखता है, ना ये किसी को फ्रेंड बनाता है, ना किसी से बात करता है, ना इसको पसंद है किसी से बात करना, तो कैसे रहेगा ये हमारे बगैर। तो मिस्टर राम कहते हैं कि लॉर्ड, ओ माय गॉड, कहते बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, टंग है, ब्रेन है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, किस चीज़ की कमी है। उन लोगों को भी देखो जो इतनी ज़्यादा इसमें डिफॉर्मिटी में या इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ रहते हैं और उनकी लाइफ में कितनी उनकी लाइफ स्ट्रगलफुल होती है, लेकिन फिर भी वो उसको आराम से इंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ को
विद स्ट्रगल्स उसको जीते हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है और तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जैसा चाहो अपनी लाइफ को वैसा मोल्ड कर सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो। और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या चूज करते हो। और अपना माइंड सेट, योर माइंड टू इट, अपना माइंड सेट करो एक तरफ, यू कुड गेट ऑन बेटर दैट ऑल द रेस्ट। जैसे बाकी लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छा तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, सिर्फ तुम्हारा एक हाफ फेस बर्न्ड है बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ। दिस इज ओनली द डिसेबिलिटी एज, और इवन दिस इज नॉट अ डिसेबिलिटी, तुम इस चीज को डिसेबिलिटी मान रहे हो। अब वो क्या कहता है कि कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज जैसा बताया डैरी ने कि वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर चुका है। उसे लगा जो एसिड कस के साथ उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, वो उसकी पूरे कॉन्फिडेंस को खा गया, उसे भी खा गया। तो वो कहते हैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, तो जैसे सब करते हैं। तो लेकिन तो वो डैडी पूछता है तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं? तो कहता है हाँ 100 फ्रेंड्स है, बहुत फ्रेंड्स है मेरे, लेकिन तुम तो अकेले रहते हो अपने घर में और इतना बड़ा घर है तुम्हारा। तो कहते हैं कि फ्रेंड्स मेरे हर जगह हैं, मतलब ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ ही रहें, मेरे फ्रेंड्स हर जगह हैं, लोग यहाँ आते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं, गेट सबके लिए ओपन रहते हैं, यहाँ आते हैं बैठते हैं, विंटर्स में फायर के पास बैठते हैं टू गेट सम वार्म हीट, वो बैठते हैं यहाँ पे मेरे से बातें करते हैं। किड्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो किस लिए आते हैं? एप्पल्स के लिए, पियोर्स के लिए। जैसे वो कह रहा था कि यू आर नॉट अ किड, यू हैव नॉट कम हियर टू स्टील, तुम चोरी करने नहीं आए हो, तुम छोटे बच्चे चोरी करते हैं। तो कहते हैं किड्स आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पे, एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए आते हैं, टॉफीज के लिए आते हैं, जो कैंडीज मैं बनाता हूँ उनके लिए। बट वो पूछता है डैडी मैं तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, आई एम नॉट योर फ्रेंड, तुम मुझे कैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ? तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, कि बिल्कुल तुम मेरे फ्रेंड हो। कैसे हो? क्योंकि तुमने ऐसा तो कोई काम किया नहीं कि मैं ये ना कहूँ कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। नाउ डैडी सेज यू डोंट नो मी, you don't know where I come from or even what my name is. Why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? I suppose not, no. You could tell me your name if you chose, and not if you didn't. Derek. Only it's Derek. But I hate that. Derek. If I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. Certainly. I might never come here again. You might never see me again, and then I couldn't still be a friend. Why not? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. अब वो क्या कहते हैं? पहले तो डैडी ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा तो कुछ काम नहीं किया कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, तो डैडी उनको ये कहता है लेकिन तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। क्योंकि अब हम फ्रेंड्स तो उन्हीं को कहते हैं ना जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम जानते हैं, उनका नेचर बिहेवियर सब हमें पता होता है। तो कहते तुम तो मुझे जानते नहीं हो, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ रहता हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो मिस्टर लैम्स को क्या कहते हैं कि इस सब चीज़ों का क्या मीनिंग है, वाई शुड दैट सिग्निफाई, ये सब क्या बता रहे हैं? कोई मुझे तुम्हारे सारे पर्टिकुलर्स थोड़े लिखने हैं। पर्टिकुलर्स लिखने का मतलब जैसे हम किसी इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए या कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वी नीड टू राइट ऑल द पर्टिकुलर्स, कि हम अपने पूरी डिटेलिंग, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेंशन करते हैं। तो कहते हैं मुझे तुम्हारे पर्टिकुलर्स नहीं लिखने, आई डोंट नीड टू राइट ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ योर्स, सो मुझे क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें पूछने की। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम बताना चाहो तुम अपना नाम बता सकते हो, और नहीं बताना चाहते तो कोई बात, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें अपना नाम बताना ही बताना है, मर्जी है तुम्हारी। तो डैरी खुद बताता है, पहले कहता है डायरेक्ट डैरी, ओनली इट्स डायरेक्ट। अब वो कहता है एक्चुअली उसका नेम डेरिक है, बट उसको डेरिक पसंद नहीं है, ही लाइक डैरी, वो डैरी बोलना पसंद करता है ताकि सब लोग उसको डैरी बुलाए, बिकॉज उसको उसके अंदर एक फील आती है, एक क्लोजनेस आती है, उसको अच्छा लगता है डैरी। तो वो कहता है कि मुझे मैं ये, और इफ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो। अब उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो, उसने ये नहीं बोला कि तुम मेरे फ्रेंड हो। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स खुद बनाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स खुद चूज करता हूँ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। तो अब मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मर्जी है तुम्हारी, सर्टेनली तुम ऐसा कर सकते हो, सोच सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अब डैडी कहता है कि मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आऊँगा और तुम मुझे कभी दोबारा देखोगे भी नहीं, और फिर हम फ्रेंड कैसे रहेंगे? हम तो फिर फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम मिलेंगे नहीं तो फ्रेंड्स कैसे रहेंगे? तो वो कहते हैं मिस्टर लैम कि क्यों नहीं, क्या दो दोस्त मिलते नहीं है, क्या वो फ्रेंड्स नहीं होते?
अब लोग इतनी दूर दूर चले जाते हैं, इतनी दूर रहते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं, तो क्या उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है? तो अब वो इसको क्या कहते हैं कि डैडी कहते हैं कि यू पास पीपल इन द स्ट्रीट। अब वो क्या एग्जाम्पल दे रहा है? अब ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, जैसे हम कहीं ट्रेवल करते हैं, हमें ऑन द वे कोई मिल जाता है जिससे हमसे बात करने लग जाता है, लेकिन वो दोबारा हमें कभी नहीं मिलता। तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारा फ्रेंड था, या वो स्ट्रेंजर तो स्ट्रेंजर ही रहेगा। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे रहूँगा, क्योंकि लोगों से हम मिलते हैं रास्ते में, वो फिर हमें कभी मिल जाते हैं, हमारी बात हो जाती है उनसे, लेकिन फिर हम उनको कभी नहीं देखते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे फ्रेंड हो गए। क्या ऐसे हम क्या सबको फ्रेंड बना लेंगे? अब वो ये कहना चाह रहे हैं। तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं उसे, doesn't mean they are enemies either, does it? No, they are just nothing. People, that's all. People are never just nothing, never. There are some people I hate. That would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. Only? Like a bomb only blew up my leg. There are some worse things can happen. You can burn yourself away inside. After I would come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people, and idiot boys with idiot boys, and people with no legs altogether. That's right. What kind of a world would that be? At least there would be nobody to stare at you because you were not like them. अब वो क्या बातें कर रहे हैं? मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मेरे एनिमी हो, मतलब फ्रेंड्स एनिमीज, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो कहते हैं अगर तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम मेरे एनिमी हो। तो क्या ऐसा भी नहीं है? तो कहता है कि हाँ, लेकिन नो, दे आर जस्ट पीपल। लोग क्या हैं? कहते हैं दे आर जस्ट पीपल। अब वो जस्ट भी यूज कर रहे हैं और पीपल भी यूज कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं और कहते हैं नथिंग, दे आर जस्ट नथिंग, दे आर जस्ट पीपल। तो कहते हैं कि पीपल नथिंग कैसे हो सकते हैं? नथिंग का मतलब तो कुछ भी नहीं, तो पीपल कैसे कुछ भी नहीं हो सकते? मतलब ये पूरा वर्ड जो है, ये पूरा वर्ड ह्यूमन से चल रहा है, ह्यूमन काइंड से, और आप ये कह सकते हैं एनिमल से, प्लांट से, इन सब चीज़ों से चल रहा है, और तुम पीपल को नथिंग कैसे कह सकते हो? तो मिस्टर लैम उसको फिर वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं हेट करता हूँ। अब वो क्या बोला कि कुछ लोगों को मैं हेट करता हूँ। पहले उसने कहा कि मैं किसी को पसंद नहीं करता, किसी को भी पसंद नहीं करता, मैं किसी को लाइक नहीं करता। और फिर कहता है कि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता। अब वो कहता है कुछ लोगों को मैं हेट करता हूँ। अब वो कहते हैं कुछ लोगों को हेट करने का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको वो लाइक करता है। तो कहते हैं मैं कुछ लोगों को हेट करता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जो एसिड की बॉटल ने तुम्हारे साथ किया था, तो उससे ज़्यादा हार्म अपने आप को कर रहे हो। क्यों? दूसरों को हेट करके। हेट करने से क्या होगा? तुम उनके बारे में सोचोगे, तुम उनके बारे में सोचोगे तो अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स लेके आओगे, नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो तुम्हारा अपने आप ही, तुम अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हो। तुम किसी और की वेट नहीं कर रहे कि कोई तुम्हें हार्म करे। तो कहते हैं कि एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस बर्न किया था, लेकिन तुम तो अपने आप को अंदर से बर्न कर रहे हो लोगों को हेट करके। अब कहते हैं ओनली बर्न्स योर फेस। तो डैडी बड़े हैरान होकर पूछते हैं ओनली, मतलब मेरा फेस बर्न हो गया, मेरा फेस ऐसा हो गया, लोग मुझे स्टेयर करते हैं, घूरते हैं, और तुम कह रहे हो ओनली, बस। तो मिस्टर लैम फिर बोलते हैं जैसे बॉम्ब ब्लास्ट में मेरी लेग ब्लू हुई, मतलब मेरी लेग चली गई, उससे ज़्यादा वर्स भी हो सकता था, उससे और बुरा भी हो सकता था। हो सकता है मेरी दोनों टांगे कट जाती, मेरे हाथ भी कट जाते, या मैं मर जाता, तो क्या होता? तो कहता है यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तुम ऐसा सोच के अपने आप को, फेस तो तुम्हारा बाहर से जला, वो तो चलो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तुम अपने आप को अंदर से जला रहे हो, मतलब तुम एक अंदर से अपना एक एसिड और डालते जा रहे हो। सो वो कहता है, अब उसको क्या बताता है कि जब मैं हॉस्पिटल से घर आया इस एक्सीडेंट के बाद, तो लोगों ने क्या बात करी, किसी आदमी ने ऐसे बोला, वन पर्सन सेड कि इसको हॉस्पिटल से लाने की जरूरत क्या थी, बेटर था इसको वहीं छोड़कर आ जाते। उसका कहने का मतलब कि इनके जैसे लोग, इसके जैसे लोग एक साथ एक ही जगह रहने चाहिए। मतलब कि जैसे ब्लाइंड लोग सब ब्लाइंड जगह, जैसे अब ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कहता है कि ब्लाइंड लोग सब एक जगह रहने चाहिए, ठीक है। इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज। इडियट मीन्स कि जो फुलिशनेस सिखाते हैं, या इमेच्योर हैं, या बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, उनको सबको इकट्ठा रहना चाहिए। तो वो कहते हैं, मिस लैम कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो जिनकी लेग्स नहीं है वो सारे एक जगह रहने चाहिए? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, दैट्स राइट। तो मिस लैम फिर उसको कहते हैं तो तुम ये सोचो कि वर्ड कैसा होगा, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वहाँ पे सारे
जिनके पैर नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ जिनके हाथ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ जिनकी फेस बर्न है, या कोई और डिफॉर्मिटी है, या कोई और प्रॉब्लम है। मतलब तुम सोचो कि वर्ल्ड कैसा होगा फिर, ये तो बहुत ही गंदा हो जाएगा। किस तरह से लोग रहेंगे और कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। तो वो डैडी क्या कहता है, कम से कम एक दूसरे को स्टेयर तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट देयर वुडंट बी नोबडी टू स्टेयर एट यू। कोई तुम्हें घूरेगा तो नहीं, स्टेयर तो नहीं करेगा, क्योंकि सबके साथ वो प्रॉब्लम होगी। हाँ, उसका कहने का मतलब ये है कि सब एक जैसे होंगे, तो किसी दूसरे का मजाक ही नहीं उड़ाएंगे। वो क्यों मजाक उड़ाएंगे, या क्यों उसको नोटिस करेंगे, या क्यों देखेंगे, क्यों? क्योंकि सारे ही एक जैसे हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि उसके बाद मिस्टर लैम ही कहते हैं कि इसका मतलब, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक। Everything's different, everything's the same, but everything is different itself. How do you make all that out? Watching, listening, thinking. I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains, the gates always open. But this isn't mine. Everything's yours if you want it. What's mine is anybody's. So I could come here again. Even if you were out, I could come here. Certainly. You might find others here, of course. Oh, well, that need not stop you. You needn't mind. It would stop them. They would mind me. When they saw me here, they look at my face and run. अब वो क्या कहता है कि तुम ये सब बातें कहाँ से लेके आते हो, कहाँ से सोचते हो ये बातें? क्योंकि मिस्टर लैम उसको क्या कहते हैं, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जितने भी बर्न फेसेस वाले हैं और तुम क्या सब एक जैसे हैं? तो अब वो भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। तो कहता है कि क्या कहना चाहते हो, कि क्या सब एक जैसे हैं? अब दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली तो एक जैसे नहीं होंगे ना। सबके थॉट्स, सबके परसेप्शन, सबकी थिंकिंग, सबका बिहेवियर, नेचर, एटीट्यूड सब डिफरेंट होगा। तो कहते हैं कि सब सेम भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे, मतलब दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। तो अब वो क्या पूछता है डैडी से कि ये सब चीजें कहाँ से लाते हो, कहाँ से सोचते हो भाई ऐसी ऐसी बातें? तो वो क्या कहते हैं उसको, वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। मतलब मैं चीज़ों को पहले वॉच करता हूँ ध्यान से और सुनता हूँ और उसके बाद सोचता हूँ। और तुम क्या करते हो, तुम सोचना शुरू कर देते हो, बाद में चीज़ों को लिसन करते हो। और वॉच तो शायद करते ही नहीं, देखते तो हो ही नहीं शायद, सिर्फ सुनते हो और सोचते हो, सोचते हो और सुनते हो, बस ये करते हो। तो अब वो क्या, क्यों? क्योंकि उसने बताया कि लेडीज ऐसे मेरे बारे में बोल रही थी, मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे थे और मैंने सुना, तो उसे ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया, मतलब खुद ही सोचना शुरू कर दिया, एक स्टोरी क्रिएट कर ली अपने माइंड में। तो अब वो क्या कह रहा है डायरी कि मुझे ऐसा घर बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, ये गार्डन बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा घर भी बहुत पसंद है जहाँ पे कर्टेंस ना हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम गेट्स खुले हुए हैं, कभी भी आ सकते हो। अब वो कहता है कि लेकिन ये तो मेरा नहीं है। तो कहते हैं उसको कि जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, जब तुम्हारा मन करे तुम आओ। तो डैडी उनसे पूछता है फिर कि क्या मैं फिर आ सकता हूँ? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल आ सकते हो। कहते तुम्हारी एब्सेंस में भी आ सकता हूँ, अगर तुम घर पे ना हो तो आ सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम कहोगे कि मेरी एब्सेंस में मेरे घर आ गया, चोरी करके चला गया। तो वो कहते हैं बिल्कुल, सर्टेनली, तुम जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, व्हेनेवर यू वांट टू कम हियर, यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आ सकते हो। तो वो कहता है कि वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। क्या कहता है कि तुम यहाँ आओगे तो औरों को भी देखोगे कि और भी यहाँ पे बहुत आते हैं, बच्चे आते हैं, वो खेलते हैं। तो कहते हैं लेकिन वो तुम्हें उनकी वजह से रुकने की या ना आने की ज़रूरत नहीं है, तुम आओ, एंजॉय करो उनके साथ। तो वो कहता है कि वो मुझे नहीं रोकेंगे, मेरे को देख के तो वो भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे देख के डर जाएंगे, मेरे फेस को देखेंगे, मुझे स्टेयर करेंगे, मुझे घूरेंगे और भाग जाएंगे डर के। तो मैं उनको नहीं, वो मुझे नहीं रोकेंगे कि तुम यहाँ मत आओ, मेरी वजह से वो रुक जाएंगे, मतलब मैं उनका आना बंद कर दूंगा। अब वो मिस्टर लैम को क्या कहना चाह रहा है कि तुम सोच लो, तुम अगर मुझे यहाँ इन्वाइट कर रहे हो तो इसका मतलब जो बाकी तुम्हारे पास आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो अब ये सोच लो चीज़, बाद में ये मत सोचना, कहना कि अरे ये क्या हुआ, मतलब एक ने आना शुरू किया डैडी ने, तो बाकी लोगों ने तो आना ही बंद कर दिया। तो अब हम यहाँ देखते हैं, अब तक हमने क्या देखा कि पहले जब डैडी एंटर किया था तो बिल्कुल टोटल नेगेटिविटी से भरा हुआ था, मतलब उसका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स लाइफ दैट वाज टोटली नेगेटिव। वो बिल्कुल लाइफ को एक अच्छे वे में या एक सही तरीके से नहीं देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे उनका कन्वर्सेशन कंटिन्यू होता जाता है, जैसे जैसे उनकी कम्युनिकेशन बढ़ती जाती है, उसकी भी थिंकिंग चेंज होती है। जैसे उसने खुद बताना शुरू किया कि उसको रेनफॉल पसंद है,
उसको इस तरह के घर पसंद है, उसको यहाँ आना अच्छा लगता है। मतलब पहले तो उसने कहा कि मैं सब चीज़ें इससे हट करता हूँ, उससे हट करता हूँ, मुझे बात करना नहीं अच्छा लगता, मतलब नेगेटिविटी में सब कुछ कर रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने ये बोलना शुरू किया कि मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस, मतलब हेट का ऑपोजिट लाइक। तो आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक दिस, इस तरह से उसने अलग अलग चीज़ें बतानी शुरू की। तो अब हम क्या देख रहे हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन डेरी, मतलब डेरी की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है बिकॉज ऑफ मिस्टर लैम। क्योंकि मिस्टर लैम से बातें करने से उसकी बहुत सारे जो थॉट्स थे वो चेंज हो गए, उसके परसेप्शन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो जो लाइफ के बारे में सोच रहा था वो काफी कुछ चेंज हो रहा है। नाउ फर्दर व्हाट विल हैपन विल डिस्कस इन अनदर पार्ट, so till then I want that you should watch the entire video and you must have your book and pen in your hand so that you can understand it in a better way. And it's a very nice story, it's a very nice play और बहुत कुछ हमें लाइफ में इसको सीखने को मिलता है और जो सीखेंगे उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग प्ले होने वाला है। क्योंकि सबकी माइंड में या सबकी लाइफ में ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जिसको हम अपनी नेगेटिविटी मान के चलते हैं, बट मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि अपनी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो, दैट्स द ओनली स्ट्रेंथ, यही वो स्ट्रेंथ है, तभी तुम्हारी वो, तुम अपने आप को कह सकते हो कि यस आई एम द बेस्ट वन। क्योंकि हम अपनी नेगेटिविटी को हम अपनी पॉजिटिव उसमें चेंज कर, अपनी स्ट्रेंथ बना लें, वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लें, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2 एंड if you understand the lesson, then don't forget to click the like button, as well as if you have not subscribed the channel, then subscribe it now and press the bell icon also to get the all latest updates. Thank you very much. Thanks for watching.